We'll go ahead with next topic. So if you remember in the last session, हमने Kirchhoff's law of radiation complete किया था. Now we are left with only three topics. उसमें से अगला topic है Stephen's law of radiation. Stephen's law of radiation. से याद रखना है कि Kirchhoff's law of radiation में आपके पास दो बॉडीज थे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर में दो बॉडीज थे, एक था ऑर्डिनरी बॉडी, एक था ब्लैक बॉडी, एंड यू हैव शोन A इक्वल टू E फॉर एन ऑर्डिनरी बॉडी. क्योंकि ब्लैक बॉडी के लिए ये प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, ब्लैक बॉडी के लिए पता है A की वैल्यू 1 है, E की वैल्यू भी 1 है, तो ब्लैक बॉडी के लिए ऑलरेडी E और A दे आर इक्वल. तो हमने यहाँ पे जो प्रूव किया था A इक्वल टू E, दैट वाज फॉर ऑर्डिनरी बॉडी. So Kirchhoff's law of radiation is deals with ordinary body, but whereas Stephen's law of radiation it deals with perfectly black body. बहुत सिंपल है. तो पहले तो हम देखेंगे what is the statement of Kirchhoff's law of radiation, Stephen's law of radiation. So it states that radiant energy emitted by a black body per unit time per unit area is directly proportional to 4 power of the temperature. तो अगर आपको याद होगा जब हमने ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम देखा था, do you remember we have plotted wavelength on x-axis and intensity of radiation, मतलब emissive power. If you remember, at lower temperature, total energy radiated is less. जैसे टेम्परेचर बढ़ा होगा तो energy radiated becomes more and more, right? Clear? So, according to Stephen's law of radiation, it states that radiant energy emitted by a black body, मतलब Q, radiant energy is Q, per unit area per unit time is directly proportional to 4 power of absolute temperature. What do you mean by absolute temperature? Temperature in Kelvin. इसको हमने क्या बोला था यार? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसको डिफाइन किया हमने. तो क्या बोलते हैं? इमिसिव पावर. लेकिन ये कौन सी बॉडी का है? ब्लैक बॉडी का. तो इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 power of absolute temperature, that is Stephen's law of radiation. तो याद रखना Stephen's law of radiation बहुत सिंपल है. It states that radiant energy emitted by a black body per unit time per unit area is directly proportional to 4 power of absolute temperature. So it states that radiant energy emitted by a black body per unit time per unit area is directly proportional to 4th power of its absolute temperature. Absolute वर्ड इतना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन ऑलवेज. So therefore, mathematically, you know radiant energy Q per unit time per unit area Q upon 80 ये होता है emissive power of black body is directly proportional to T raised to 4. Therefore, EV is proportional to T raised to 4. ये हो गया आपका Stephen's law of radiation. And then you should know जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है. So that constant of proportionality will denoted by sigma. इस सिग्मा को बोलते हैं Stephen's constant. This is called as Stephen's constant, and where sigma is constant of proportionality
constant of proportionality known as Stephen's constant. Known as Stephen's constant. अभी जो Stephen's constant है सिग्मा, it will be initial power upon temperature raised to 4. कुछ नहीं है, T raised to 4 को डिवाइड कर दिया तो सिग्मा will be equal to initial power upon T raised to 4. अब initial power तो आपको ऑलरेडी पता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम और T raised to 4. So what will be SI units of sigma? ये जूल में पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर केल्विन रेज़ टू 4, क्योंकि टेम्परेचर केल्विन और रेज़ टू 4, करेक्ट. एंड इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो सिग्मा की वैल्यू आती है 5.87 into 10 raised to minus 8. तो 5.87 into 10 raised to minus 8 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड T raised to 4. T मतलब केल्विन, टेम्परेचर raised to 4 मतलब केल्विन raised to 4. गुड, यहाँ तक क्लियर? Is this clear? There is nothing up to this point. Yes, 5.6787 नहीं, 5.67 आता है ये वैल्यू. 5.67 into 10 raised to minus 8. 5.67 into 10 raised to minus 8. Constant value है. Then, do you know what is joule per second? What is joule per second? What is rate at which work is done? Power. What is SI unit of power? Watt. तो जूल पर सेकंड क्या हो गया? वैट आ गया. तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 5.67 into 10 raised to minus 8. ये जूल पर सेकंड आ गया. वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू 4. यहाँ तक क्लियर? राइट. तो सो फार हमने एक सिंपल सा लॉ यहाँ पे डिफाइन किया है, विच इज कॉल्ड एज स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन. आपको सिर्फ इतना ही बताता है अमाउंट ऑफ एनर्जी from a black body per unit area per unit time, amount of radiant energy emitted by a black body per unit area per unit time is proportional to T raised to 4. ये तो हमको पहले से पता ही था. कैसे पता था? क्योंकि हमने, इफ यू रिमेम्बर, पिछले लेक्चर्स में we have seen this graph, amount of energy emitted per unit area per unit time. ये तो इमिसिव पावर है ही. इमिसिव पावर एज यू कैन सी, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे इमिसिव पावर भी ज्यादा होगा. तो ये जो हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम देखा था, इसमें से हमने पहले भी एक ऑब्जर्वेशन से वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ डिफाइन किया है. लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ एट विच यू गेट पीक ऑफ, किसका पीक है ये? टोटल एनर्जी इमिटेड ना. So the wavelength at which the intensity of radiation is maximum is inversely proportional to absolute temperature. उसको मैं बोला था Wien's displacement law. दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा होगा तो टोटल एनर्जी इमिटेड इज मोर. तो वो दूसरा जो हमने ऑब्जर्वेशन लिखा है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन. It states that radiant energy emitted by a black body per unit time per unit area is directly proportional to 4th power of absolute temperature. Radiant energy Q per unit area per unit time proportional to T raised to 4, but energy per unit area per unit time is इमिसिव पावर. किसका? ब्लैक बॉडी का. तो ये लॉ किसके लिए है? ब्लैक बॉडी के लिए. तो इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू T raised to 4. इमिसिव पावर इक्वल टू सिग्मा into T raised to 4, where sigma is called as Stephen's constant. It is given by EB upon T raised to 4. EB मतलब Q upon AT, T raised to 4. Q मतलब जूल, A मतलब मीटर स्क्वायर, टाइम मतलब सेकेंड, टेम्परेचर मतलब केल्विन. राइट. ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू याद रखना है आपको, 5.67 into 10 raised to minus 8. करेक्ट. ये तो हो गया ब्लैक बॉडी के लिए, क्योंकि स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन हम ब्लैक बॉडी के लिए ही डिफाइन करते हैं. बट अगर ऑर्डिनरी बॉडी के लिए लिखना होगा तो फॉर एन ऑर्डिनरी बॉडी व्हाट यू कैन डू इज, फॉर एन ऑर्डिनरी बॉडी
और एन ऑर्डिनरी बॉडी, डू यू रिमेम्बर कि हमने कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन डिफाइन कैसे किया था? व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन फॉर एन ऑर्डिनरी बॉडी? इट इज द रेशियो ऑफ emissive power of the body to that of emissive power of black body. So coefficient of emission of a body is defined as the ratio of emissive power of the body to that of emissive power of black body. Therefore, emissive power E of body is coefficient of emission into emissive power of black body. लेकिन ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, from equation number 1, what is emissive power of black body? Sigma T raised to 4. Therefore, एक काम करेंगे, from equation number 1, E equal to small e coefficient of emission into emissive power of black body is sigma T raised to 4. ये हो गया स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन फॉर ऑर्डिनरी बॉडी। तो सिर्फ इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी को, मतलब सिग्मा टी रेज़ टू 4 को आपको कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन से मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअली एक ही बात है, क्यों एक ही बात है? लुक, अगर मैं यहाँ पे ई नहीं लिखता हूँ, ई नहीं लिखना मतलब ई की वैल्यू कितना 1, लेकिन ई की वैल्यू 1 कौन सी बॉडी के लिए होता है? ब्लैक बॉडी के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? करेक्ट। यहाँ कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे कौन है? 1। यहाँ पे 1 है मतलब यहाँ पे कौन है? ई डी। करेक्ट। तो याद रखो कि एक ही बात है, सिर्फ इतना ही है, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन फॉर अ ब्लैक बॉडी इज 1 एंड फॉर ऑर्डिनरी बॉडी इज नॉट 1, इट इज बिटवीन 0 एंड 1। यहाँ तक क्लियर? गुड, सिंपल। तो व्हाट इज स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन? इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी ईबी is directly proportional to 4th power of temperature. So EB equal to sigma T raised to 4. For ordinary body सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है? E से। डन। अब अगर हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है, तो जब हम ये लॉ डिफाइन करते हैं, जब भी हमने लॉ को स्टेट किया, हमने ये नहीं बताया कि ये ब्लैक बॉडी सराउंडिंग कौन सा टाइप के सराउंडिंग है, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल सन इज अ ब्लैक बॉडी, उसका सराउंडिंग टेम्परेचर निग्लिजिबल है, वेरी वेरी लेस। टेम्परेचर जो भी है वो किसका है? सन का है। करेक्ट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, टेक रियल लाइफ एग्जाम्पल, आप घर पे टंगस्टन का बल्ब रखते हो, लगाते हो, आता है ना वो 60 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब, वो किस सराउंडिंग में है? एटमोस्फियर, मतलब आपके घर में लगाया है। What is room temperature? 27 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत बार जो ब्लैक बॉडी की आप बात कर रहे हो, इट इज केप्ट इन अ सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टेम्परेचर इज नॉट निग्लिजिबल। तो उस केस में क्या होगा? तो ब्लैक बॉडी केप्ट इन अ सराउंडिंग, उस केस में स्टीफन्स लॉ में क्या चेंज होगा वो देखना पड़ेगा। तो लेट अस लुक एट ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी केप्ट in a surrounding. ओके, तो लेट अस से हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है, उसका टेम्परेचर T है और इट इज इन अ सराउंडिंग जिसका टेम्परेचर लेट अस से T0 है। तो मैं यहाँ पे पहले सिचुएशन बता देता हूँ तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ ब्लैक बॉडी लाइक बल्ब, इट इज केप्ट इन सराउंडिंग। तो ये सराउंडिंग में है, इसका जो सराउंडिंग है इट इज एट सम टेम्परेचर T0। तो सराउंडिंग टेम्परेचर को नॉर्मली हम लोग T0 से डिनोट करेंगे। ओके, तो ये सराउंडिंग था एंड वी हैव अ बल्ब, हमारे पास एक बल्ब है, सोर्स ऑफ लाइट है, दैट सोर्स ऑफ रेडिएशन is at temperature T और सराउंडिंग is at temperature T0, राइट। तो इस केस में स्टीफन्स लॉ चेंज कैसे होगा वो देखते हैं। तो जब हमने स्टीफन्स लॉ यहाँ पे डिराइव किया था या डिफाइन किया था,
तो इट वाज अज्यूम कि सराउंडिंग का टेम्परेचर जीरो, देयर इज नथिंग इन द सराउंडिंग। लेकिन अगर सराउंडिंग में कुछ और है जिसका टेम्परेचर तीन और है, तो व्हाट विल हैपन, लेट अस सी। तो इफ a perfectly black body is a perfectly black body having temperature T at temperature T, having temperature T is kept in a surrounding, is kept in a surrounding with temperature T naught, then two things will happen. Number one, अगर हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है, जिसका सराउंडिंग टेम्परेचर T नॉट है, तो दो चीज होगी। एक तो ब्लैक बॉडी एनर्जी रेडिएट करेगा, और दूसरा वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो एनर्जी रेडिएटेड per unit time, per unit area is proportional to T raised to 4, right? Therefore, energy radiated by the black body per unit time, per unit area, per unit time, per unit area is proportional to T raised to 4, is proportional to T raised to 4. Number two, ये सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब भी करेगा, क्योंकि सराउंडिंग में भी हीट है, तो रेडिएट करेगा तो एब्जॉर्ब भी करेगा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ब्लैक बॉडी per unit time, per unit area, per unit area सेम है, सिर्फ वहां पे रेडिएटेड था, यहाँ पे एब्जॉर्ब है। रेडिएटेड मतलब रिलीज। तो एनर्जी एब्जॉर्ब by the black body per unit time per unit area is proportional to T naught raised to 4, is proportional to T naught raised to, right? So what is net loss? What is net loss of energy? What is net loss of energy? Sigma T raised to 4 रिलीज कर दिया और सिग्मा T naught raised to 4 एब्जॉर्ब कर लिया। तो what is net loss? If you give away 100 rupees and take back 80, what is net loss? रिमेंबर, जो सराउंडिंग है वो भी ब्लैक बॉडी जैसा है, ये assumption है, क्योंकि अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। चलो सिंपल चीज है, एक्सट्रीमली सिंपल। इसको हम बोल देंगे एनर्जी रिलीज। मैंने टेक्स्ट बुक में जो नोटेशन यूज किया वही देख लेता हूँ नोट्स में। तो नोटेशन ऐसा कुछ लिखा नहीं है मैंने, डजंट मैटर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एनर्जी रेडिएटेड मतलब एनर्जी रिलीज इक्वल टू सिग्मा T raised to 4। एनर्जी मतलब इमिसिव पावर एब्जॉर्ब इक्वल टू सिग्मा T naught raised to 4। तो व्हाट इज नेट लॉस? मैंने भी बता दिया, सिंपल एग्जांपल। आपने किसी को 100 रुपीज दे दिया और उसने आपको 80 रुपीज वापस कर दिया, तो व्हाट इज योर लॉस? 20। तो हाउ मच एनर्जी द बॉडी इज रेडिएटिंग? सिग्मा T raised to 4 मतलब एनर्जी रिलीज्ड माइनस एनर्जी एब्जॉर्ब। तो क्या डिफिकल्ट है इसमें? नथिंग, सिंपल। तो नेट लॉस मतलब इमिसिव पावर, नेट इमिसिव पावर सिग्मा T raised to 4 माइनस सिग्मा T naught raised to 4। तो सिग्मा आ गया आपके पास कॉमन, T
T⁴ माइनस T⁴ ये कौन सी बॉडी के लिए किया हमने, लिखा है यहाँ पे फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी और ऑर्डिनरी बॉडी के इक्वेशन में एक ही डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस है? ये है ऑर्डिनरी बॉडी का और ये है परफेक्टली ब्लैक बॉडी का। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। इक्वेशन 1 किसके लिए है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। और ये जो इक्वेशन है किसके लिए है? ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। डिफरेंस क्या है? ई। तो ये जो आपने नेट लॉस का इक्वेशन डिराइव किया, ये कौन सी बॉडी का है? ब्लैक बॉडी। तो ऑर्डिनरी बॉडी का क्या आएगा? ई इंटू, फॉर एन ऑर्डिनरी बॉडी net loss will be equal to E into sigma T⁴ minus T⁴. इस केस में आप बोलोगे the temperature of ordinary body is T and the temperature of surrounding is T0. So E sigma T⁴ minus T⁴. Done. Clear? Yes? तो एकदम सिंपल लॉ है। जो लेट आए, आई विल रिपीट वंस अगेन, नॉट एन इशू। हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है T, ये केल्विन स्केल में है। तो वो ब्लैक बॉडी कितना एनर्जी इमिट करेगा पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू 4 पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको बोलते हैं स्टीफन लॉ ऑफ रेडिएशन। लेकिन एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया हमने डिफाइन करके रखा था, ये है इमिसिव पावर। तो इमिसिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू T⁴। यहाँ B क्यों लिखा है? क्योंकि ये ब्लैक बॉडी के लिए है। तो EB इज प्रोपोर्शनल टू T⁴। तो EB इक्वल टू सम कांस्टेंट सिग्मा T⁴। सिग्मा को बोलते हो आप स्टीफन्स कांस्टेंट। तो स्टीफन्स कांस्टेंट हमको मिल गया EB अपॉन T⁴। इसकी वैल्यू आती है 5.67 इंटू 10⁻⁻⁸ और EB मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, बराबर। ये क्या है? ये आपके पास यहाँ पे है EB है Q अपॉन 80 और T⁴ ऑलरेडी था। तो जो सिग्मा की वैल्यू हमारे पास आई वो है 5.67 10⁻⁸ जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड Kelvin⁴। करेक्ट। लेकिन जूल पर सेकेंड होता है बैट, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे 5.67 10⁻⁸ वैट पर मीटर स्क्वायर Kelvin⁴। यहाँ तक क्लियर? अब हमको सिर्फ ये पता करना है कि एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑर्डिनरी बॉडी। ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर और ऑर्डिनरी बॉडी का इमिसिव पावर, मतलब सीक्वेंस ऑफ रेडिएशन फॉर ब्लैक बॉडी एंड फॉर ऑर्डिनरी बॉडी एक ही डिफरेंस है। वो कहाँ से आया? डू यू रिमेम्बर कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन E इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी अपॉन ब्लैक बॉडी? अगर ये याद होगा तो इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी इज E इंटू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। लेकिन इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी कितना है? सिग्मा T⁴। ये आ गया ऑर्डिनरी बॉडी का। सिर्फ ऑर्डिनरी बॉडी के लिए E से मल्टीप्लाई किया, स्मॉल e से मल्टीप्लाई कर लिया, डन। अब अगर मेरे पास एक ब्लैक बॉडी है जो एक सराउंडिंग में है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ब्लैक बॉडी है, हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है और ये जो ब्लैक बॉडी है इट इज केप्ट इन सम सराउंडिंग। इसका टेम्परेचर है T, सराउंडिंग का है T0, राइट। तो इमिसिव पावर मतलब स्टीफन्स लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू, ये एनर्जी रिलीज है। तो ब्लैक बॉडी ने कितना एनर्जी रिलीज किया? सिग्मा T⁴। लेकिन सराउंडिंग भी एक टेम्परेचर पे है, तो जो सराउंडिंग हीट रिलीज करेगा वो कौन एब्जॉर्ब करेगा? ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी ने कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया? सिग्मा T⁴। तो नेट लॉस कितना हुआ? कितना हुआ? रिलीज माइनस एब्जॉर्ब। तो सिग्मा T⁴ माइनस सिग्मा T⁴। तो व्हाट इज नेट लॉस ऑफ एनर्जी? सिग्मा कॉमन T⁴ माइनस T⁴। ये कौन सी बॉडी का है?
ब्लैक बॉडी करना है। ऑर्डिनरी बॉडी के लिए क्या लिखोगे, सिर्फ मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, ई सिग्मा टी रेज टू 4 माइनस टी नॉट रेज टू 4, डन। तो इससे सिंपल लॉ तो कोई है नहीं, सो सिंपल। So let us move ahead with last theoretical topic of this chapter, that is Newton's law of cooling. अब बहुत जल्दी आप इसको एक्सपीरियंस भी करोगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका। अब कुछ महीने में फ्रॉम नाउ वी विल एंटर इनटू विंटर्स। ठंड में हमारी आदत होती है गर्म पानी से नहाने की, हम पानी बहुत गर्म कर देते हैं, जितना ज्यादा गर्म करते हैं उतना जल्दी ठंडा होता है। फिर आई डोंट नो बट एटलीस्ट आई हैव एक्सपीरियंस दिस। मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि थोड़ा ठंडा पानी मिक्स करते जाओ। हाँ, दो टाइप होते हैं, एक हॉट वाटर एक कोल्ड वाटर। तो हॉट वाटर के साथ साथ कोल्ड वाटर मिक्स करोगे तो पानी जल्दी ठंडा नहीं होगा। दैट टाइम आई यूज्ड टू थिंक कि क्या लॉजिक है इसके पीछे, पर लॉजिक नहीं, साइंस है उसके पीछे। तो इट टेल्स यू, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग टेल्स यू the rate of loss of heat by a body is directly proportional to difference of the temperature of body and the surrounding. बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही कूलिंग फास्ट होगा। अब कूलिंग मतलब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, क्योंकि कूलिंग मतलब क्या होता है, हाउ डू यू डू कूलिंग। अभी फॉर एग्जांपल इस क्लासरूम में एयर कंडीशन, व्हाट डू यू मीन बाय कूलिंग। कूलिंग का मतलब क्या, टेम्परेचर मतलब हीट बाहर निकालना। हीट बाहर निकालना मतलब क्या, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। एक सेकेंड में बॉडी कितना हीट लॉस करेगा ये डिपेंड करेगा बॉडी के टेम्परेचर पे और सराउंडिंग के टेम्परेचर पे। सेम इज ट्रू विथ हॉट चाय। सुबह सुबह उठ के गरम गरम चाय, ठंड में क्या होता है, जितना ज्यादा गर्म है उतना जल्दी ठंडा होता है। फॉर द सेम रीजन, द रीजन इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो एक सिंपल एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वी हैव एक्सट्रीमली हॉट बॉडी। इमेजिन मेरे पास एक बॉडी है वेरी हॉट और मेरे पास एक बॉडी है लिटिल कोल्ड, थोड़ा सा टेम्परेचर कम है इसका। वी हैव टू बॉडीज। फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जस्ट फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर मैंने लिया 100 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। सराउंडिंग का टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो 100 डिग्री का बॉडी है इसका कूलिंग फास्टर होगा कंपेयर टू 80 डिग्री, क्योंकि ये ज्यादा हीट लॉस कर रहा है पर सेकेंड कंपेयर टू द other body. This is nothing but Newton's law of cooling. So it states that rate of loss of heat by a body is directly proportional to. It states that the rate of loss of heat. I mean, what do you mean by the rate of loss of heat? The rate of loss of heat. इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं, हीट मतलब क्या, क्यू, रेट मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dq by dt। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट is directly proportional to is directly proportional to is directly proportional to the difference of temperature। Imagine body का टेम्परेचर है थीटा माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर है थीटा 0। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग। ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन टेक्स्ट बुक में लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। वो बोलते हैं इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस ऑफ टेम्परेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस, एक्स्ट्रा, एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर द सराउंडिंग। बॉडी का टेम्परेचर कितना, थीटा, सराउंडिंग का कितना, थीटा 0। व्हाट दे राइट इज दे से दैट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस, मतलब एक्स्ट्रा। किसका एक्सेस, एक्सेस ऑफ टेम्परेचर। किसका टेम्परेचर एक्सेस है, बॉडी का। एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी मतलब कौन, थीटा।
over the surroundings, over the surroundings, over the surroundings, surrounding का टेम्परेचर क्या है थीटा 0, एक्सेस मतलब क्या माइनस, एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर, बात एक ही है, डजंट मैटर। अगर आप ऐसा भी लिखते हो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग, वो भी वही है, राइट? तो वैसा भी लिखोगे तो भी चलेगा। इफ यू वांट यू कैन आल्सो राइट दैट वे, यू विल स्टिल गेट मार्क्स, लेकिन सिर्फ आपके जो टेक्स्ट बुक है उनके लिखने का तरीका ऐसा है, तो मैं लिख देता हूँ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, or it says that the rate of loss of heat is directly proportional to difference in temperature, difference in temperature of the body, of the body and the surroundings. तो फिर क्वेश्चन ये था कि ऐसा क्यों नहीं लिखा, जब इन्होंने बोला एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, मतलब क्लियर हो गया कि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और सराउंडिंग का कम है। लेकिन जब आप ऐसा देखते हो डिफरेंस इन टेम्परेचर, इसके दो मतलब होते हैं, इसका एक मतलब होता है थीटा माइनस थीटा नॉट, दूसरा होता है थीटा नॉट माइनस थीटा। तो दैट इज व्हाई नॉर्मली लिखते वक्त हम एक्सेस लिखते हैं, सो दैट वी आर मेकिंग क्लियर कि ज्यादा टेम्परेचर किसका है, किसका है, बॉडी को। देयरफॉर मैथमेटिकली, मैथमेटिकली रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, मैं बार बार बोल रहा हूँ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब क्यू, आगे जाके मैं और एक वर्ड यूज करूंगा रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, तो उसको लिखेंगे टी, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर को लिखेंगे टी, इसलिए मैंने टेम्परेचर के लिए यहाँ पे क्या यूज किया है थीटा। तो यू नीड टू रिमेम्बर कि मैंने नोटेशन चेंज क्यों किया, जानबूझ के चेंज किया क्योंकि आगे जाके मुझे कैपिटल टी यूज करना है फॉर टेम्परेचर इन जनरल। तो याद रखो नोटेशन में जहाँ पे कैपिटल टी ऑलरेडी हम यूज करने वाले हैं तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग थीटा हियर। एनीवेज, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट is proportional to excess of temperature of the body over surrounding। जब भी आपको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना हो क्या लिखते हो, कांस्टेंट, दिस इज सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। Equation number 1 where k is constant of proportionality, constant of proportionality, यहाँ तक क्लियर। अब 11th स्टैंडर्ड में अगर आपको याद होगा आपने हीट इक्वेशन सीखा था, बट आई एम वेरी श्योर किसी को याद ही नहीं है, शायद कवर ही नहीं किया होगा रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। एटलीस्ट यू शुड नो बिकॉज मैंने ये पढ़ाया है, मैंने ये भी बोला था कि इस साल के लिए डिलीटेड है ये, लेकिन तुमको 12th में लगने वाला है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, भूल गए तो भूल गए, डजंट मैटर। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब डी क्यू, ये पता होना चाहिए, इट इज इक्वल टू एम सी डी थीटा। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डी क्यू बाई डी टी करोगे तो ये आ जाएगा एम सी डी थीटा बाई डी टी। हीट इक्वेशन आपको क्या बताता है, पहले तो पता होना चाहिए हीट इक्वेशन क्या, हीट इक्वेशन is equal to, heat is equal to m, where m is mass of the substance in gram or kilogram, right? अब be careful here, अगर आप यहाँ पे m लिख रहे हो तो यहाँ पे ये जो c है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जनरल नोटेशन है। हमने दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीखे थे, कौन से दो, कौन से दो, मोलार एंड प्रिंसिपल। अगर आप इस n को बोलते हो ये मास है तो यहाँ पे लिखोगे s, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। अगर आप यहाँ पे इसको लिखते हो n
इसको आप लिखते हो ए नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे आप लिखोगे मोलार स्पेसिफिक हीट, क्योंकि अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो कौन आएगा, मोलार, राइट। तो इन जनरल ये जनरल फॉर्मूला है m इंटू सी इंटू डी टी। टी इज टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर किसी नोट किया आपने, सीखा। तो हीट इक्वेशन इज इक्वल टू m, m कैन बी मास और m कैन बी नंबर ऑफ मोल्स। अगर m मास है तो ये स्पेसिफिक हीट इट इज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, अगर m नंबर ऑफ मोल्स है तो ये है मोलार स्पेसिफिक हीट। और व्हाट इज डी थीटा, चेंज इन टेम्परेचर। आपने हीट सप्लाई किया तो हीट तो टेम्परेचर बढ़ाएगा ना बॉडी का। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी क्यू, यू आर सप्लाइंग हीट, तो heat supplied equal to mc change in temperature, correct। m stands for mass or number of moles, c stands for specific heat capacity, principal या फिर molar, and d theta stands for change in temperature। हमारे पास dq by dt था, यहाँ पे by dt है क्या, नहीं, तो ले लो ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मुझे बताओ मास तो मास है, चेंज होता है क्या, मास एक कांस्टेंट है, डेरिवेटिव में कांस्टेंट कहाँ आता है, बाहर, सी तो कांस्टेंट है, ये भी क्या है कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव के बाहर से चेंज क्यों हुआ, डी थीटा मतलब टेम्परेचर, तो हो गया। बट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज, therefore from equation number 1 and 2, therefore from equation number 1 and 2, dq by dt दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी आएगा सेम, तो क्या आएगा mc d थीटा बाय dt इक्वल टू k थीटा माइनस थीटा नॉट, therefore d theta by dt equal to k upon m into c theta minus theta naught, k constant, m constant, c constant, पूरा का पूरा constant, therefore d theta by dt is proportional to theta minus theta naught। ये हो गया अल्टरनेट स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, सिर्फ एक सिंगल वर्ड का चेंज, सिर्फ एक दो वर्ड का चेंज है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, यहाँ पे लिखोगे इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि डी थीटा बाई डी टी मतलब कितना टेम्परेचर चेंज हुआ पर सेकेंड, डी क्यू बाई डी टी का मतलब क्या था, कितना हीट लॉस हुआ पर सेकेंड, डी थीटा बाई डी टी का क्या मतलब है, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ पर सेकेंड, डी क्यू बाई डी टी का क्या मतलब है, कितना हीट लॉस हुआ। तो हमने क्या लिखा था, इट स्टेट्स दैट the rate of loss of heat is directly proportional to excess temperature of the body over the surrounding। अब अल्टरनेट स्टेटमेंट में अल्टरनेट स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, जो अल्टरनेट स्टेटमेंट है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का, उसमें हम क्या लिखेंगे, उसमें हम इतना ही बोलेंगे इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ fall of temperature, rate of fall of temperature is directly proportional to excess of temperature of the body over the surroundings। हो गया खत्म, दिस इज न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, क्लियर। तो आज हमने दो इंपॉर्टेंट लॉज देखे, डिफरेंस लॉ ऑफ रेडिएशन और दूसरा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो रेडिएशन चैप्टर को अगर आप समराइज करोगे, हमको न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं उससे पहले समरी पता होना चाहिए। तो रेडिएशन चैप्टर में सबसे पहला चीज हमने देखा व्हाट डू, यहाँ पे रेडिएशन कौन सा रेडिएशन है, थर्मल रेडिएशन। कौन सी एनर्जी की बात हो रही है, थर्मल एनर्जी की। उसको हमने क्या बोला था, रेडियंट एनर्जी। तो सबसे पहला टॉपिक ये था कि जब एक सरफेस पे थर्मल एनर्जी इंसिडेंट होता है Q, उसका क्या क्या हो सकता है, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन। तो टोटल एनर्जी Q इक्वल टू QA प्लस QR प्लस QT डिवाइड बाय Q ऑन बोथ साइड्स, तो 1 इक्वल टू QA बाय Q प्लस QR बाय Q प्लस QT बाय Q। तो जो QA बाय Q था इसको बोला था कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, QR बाय Q को बोला था कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, QT बाय Q को बोला था कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन।
right? Correct. So 1 equal to A plus R plus T, right? So depending on the values of A, R and T, हमने सब्सटेंस को कैटेगराइज किया था, क्लासिफाई किया था। सबसे पहला था डायथर्मनस सब्सटेंस, P value 1, A or R value 0. Substance which transmits all the radiant energy falling onto it is called as diathermalous substance. ना absorb करेगा ना reflect करेगा, क्या करेगा? Transmit. ऐसे substance को हम क्या बोलते हैं? Transparent, right? जितना भी heat energy incident हुआ पूरा का पूरा transmit कर दिया। दूसरा था athermalous substance जिसका T value 0 है लेकिन A plus R equal to 1 है। ना A 0 है ना R 0 है, only T is 0, only T is 0। इसको आप बोलते हो एथर्मनस सब्सटेंस। इसको आप बोलते हो ओपेक, ऐसा सब्सटेंस जो ट्रांसमिट नहीं करता लेकिन एब्जॉर्ब या फिर रिफ्लेक्ट करता है, इट इज कॉल्ड एज एथर्मनस सब्सटेंस। अब इसमें भी दो क्लासिफिकेशन और थे। अगर T तो 0 ही रहेगा, अगर A भी 0 हो गया तो R इक्वल टू 1। R इक्वल टू 1 मतलब पूरा का पूरा एनर्जी रिफ्लेक्ट कर दिया, इसको बोलते हो आप गुड रिफ्लेक्टर, परफेक्ट रिफ्लेक्टर्स, राइट। अगर A की वैल्यू 1 है, R और T की वैल्यू 0 है, तो A इक्वल टू 1 मतलब परफेक्ट एब्जॉर्बर, इसको बोलते हो ब्लैक बॉडी। यहाँ तक क्लियर? गुड। देन उसके बाद हमने कौन सा टॉपिक लिया था? हमने इमिसिव पावर डिफाइन किया था, अगर याद होगा तो। याद है इमिसिव पावर डिफाइन किया था, राइट? Emissive power is defined as the amount of radiant energy emitted per unit area per unit time, right? इसको हमने इमिसिव पावर पढ़ा था। देन इसके बाद ऐसा लिंक होना चाहिए आपके सिस्टम के अंदर। क्या था इसके बाद का टॉपिक? ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, क्योंकि ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के लिए हमको इमिसिव पावर लगने वाला है। हमने वाई एक्सिस पे इमिसिव पावर प्लॉट किया, एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ प्लॉट किया। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर मेजरिंग इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट डिफरेंट वेवलेंथ, कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी फिक्स। पहले एक टेम्परेचर पे बॉडी को फिक्स किया, अलग अलग वेवलेंथ पे कितना इमिसिव पावर है वो चेक किया। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? नॉन यूनिफॉर्म। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था? इमिसिव पावर मतलब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेवलेंथ। दूसरा क्या था? इट रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग अगेन, राइट। तीसरा क्या था? एरिया अंडर द कर्व गिव्स टोटल एनर्जी रेडिएटेड। ये तीन ऑब्जर्वेशन थे सिंगल कर्व से। फिर आपने एक साथ 4-5 बॉडी का, 6 बॉडी का स्पेक्ट्रम प्लॉट किया। तो अभी आज ही मैंने बताया था थोड़ा टाइम पहले, व्हाट डू यू सी? What do you notice? You notice something like this. ये सिंगल बॉडी का है, वो एक साथ मल्टीपल बॉडीज का है। So what do you see? As the temperature increases, energy distribution still remains non-uniform. Number 2, the wavelength at which intensity of radiation is maximum is inversely proportional to absolute temperature. Number 3, with increase in temperature, total energy emitted by the body also increases. फिर जो नंबर 2 का ऑब्जर्वेशन था उसको हम बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। उसके इमीडिएटली बाद था वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। लैम्डा मैक्स इक्वल टू बी अपॉन टी, बी इक्वल टू लैम्डा मैक्स इनटू टी। बी की वैल्यू आती है 2.89 into 10 raised to -3। लैम्डा मैक्स इन मीटर, टेम्परेचर इन केल्विन पर मीटर केल्विन, करेक्ट, राइट। इसके बाद हमने देखा था किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन। उससे पहले हमने डिफाइन किया है कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। इससे पहले हमने डिफाइन किया है कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ बॉडी टू दैट ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। E upon EB, capital E upon capital EB is called as कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। तो ब्लैक बॉडी अगर है तो ब्लैक बॉडी का E वैल्यू कितना है? 1। ऑर्डिनरी को कितना है? 0 से 1 के बीच में। इसके बाद हमने देखा था Kirchhoff's law of radiation for any ordinary body kept in a constant temperature enclosure with black body, with perfectly black body, so A equal to E. So at a given temperature, coefficient of absorption A is equal to coefficient of emission.
राइट, एट द सेम टेम्परेचर। हमने प्रूव किया था, इसका अल्टरनेट स्टेटमेंट भी लिखा था, एट अ गिवन टेम्परेचर द इमिसिव पावर ऑफ एन ऑर्डिनरी बॉडी टू इट्स कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। देखो वही है, at a given temperature the ratio of emissive power of a body to its coefficient of absorption is equal to a constant and that constant is emissive power of a body at the same temperature। उसके बाद आज हमने आखिरी के दो टॉपिक कवर किए और वो आखिरी के दो टॉपिक थे कौन से थे? Stephen's law of radiation and Newton's law of cooling. Now it is time for us to go ahead with numericals because that is the end of theory part of this chapter. तो हमने जो theory part cover किया उस पर भी क्वेश्चन देखने हैं। Example 3.5, calculate the value of lambda max for solar radiation। तो हमारा जो सन है वो जो रेडिएशन इमिट करता है उसके लिए लैम्बडा मैक्स कितना है? Assuming that the surface temperature of sun is 5800 Kelvin, value of B is 2.897 into 10 raised to minus 3 meter Kelvin. In which part of the electromagnetic spectrum does this value lie? मतलब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ फाइंड करना है लैम्बडा मैक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद है क्या? अरे गामा रे, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो जो लैम्बडा मैक्स तुम फाइंड करोगे वो कौन से रीजन में आएगा हमको ऑलरेडी पता है, विजिबल में आता है क्योंकि हमारा सन आपको पता है लुक्स येलोइश इन कलर। So if it looks yellowish in color, so very sure it will be in visible region of the spectrum। तो क्या क्या दिया है देख लेते हैं। तो गिवन क्वांटिटीज में हमको दिया है सरफेस टेम्परेचर T 5800 केल्विन। ओके, दूसरा हमको वैल्यू B दी है 2.897 into 10 raised to minus 3 नॉट मिली केल्विन, इट इज मीटर केल्विन। और आपको फाइंड करने के लिए बोला है, क्या बोला है? लैम्बडा मैक्स। और सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है क्योंकि हमको पता है फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला बताओ। हाँ बताओ, लैम्बडा मैक्स इक्वल टू बी अपॉन टी। तो है ही क्या क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़े से कैलकुलेशन। तो लैम्बडा मैक्स इक्वल टू बी अपॉन टी। बी की वैल्यू दी है 2.897 into 10 raised to minus 3 बराबर, और इसकी वैल्यू भी दी है 5800। अब आप एक काम कर सकते हो, ये जो 5800 है इसको आप लिख सकते हो, ये आ गया 2.897 into 10 raised to minus 3 अपॉन 5.800 into 10 raised to plus 3। 5.8 का रेसिप्रोकल आपको लॉग बुक से मिल जाएगा, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2.8 से, करेक्ट। पर रफली बता देता हूं मैं आपको, अप्रोक्सीमेटली बता ही देता हूं। मैंने आपको बताया था ये अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 2.9 बराबर, राइट। मैं रफली बता रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं। 1 एंड 2 व्हाट इज 1/2? 0.5, ये 10 पावर ऊपर गया -6, ये आ गया 5 into 10 पावर -7। इसको एक काम करो, 10 पावर +3 लिखो। था क्या 10 पावर +3 हमारे पास? था क्या यहाँ पे +3 था क्या? था कि नहीं? नहीं है तो लिखा है, तो फिर क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वेवलेंथ नॉर्मली एंगस्ट्रॉम में लिखते हो आप। व्हाट इज एंगस्ट्रॉम? 10 raised to -10। तो -7 और -3 कितना हो गया? कितना हो गया? अरे -7 और -3 कितना हो गया? -10। तो 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम। ये 5 into 10 पर -7 तक तो कोई प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए आपको। सिर्फ मैंने ये +3 -3 एडजस्ट किया क्योंकि वेवलेंथ is expressed in 10 power -10। 10 power -10 को आप बोलते हो 1 एंगस्ट्रॉम, तो ये 5000 एंगस्ट्रॉम है, राइट। तो आंसर कितना है हमारा?
5000 एंगस्ट्रॉम। ये क्या आंसर है? ये है अप्रोक्सीमेट आंसर। एग्जैक्ट देखोगे तो 4995 आएगा। 4995 कैसे? लेट अस चेक। भूलना नहीं, ये हमने अप्रोक्सीमेशन किया। चेक कर लो, यू विल सी 2.897 divided by 2.897 divided by 5.8, 499,482, 0.499482 हमारा था 0.5, क्योंकि हमने डायरेक्टली 1 एंड 2 कर दिया इसको। तो एग्जैक्ट देखोगे तो 0.4998, अरे भूल गया वापस। ठीक है, 4 था बीच में, 482 था, ठीक है, इट वॉज 482, तो इट वॉज 482। मुझे राउंड ऑफ करना है वैसे भी, बराबर। अब करेक्ट है। 10⁻⁻⁶. Can I write it down like 4.99482 into 10⁻⁻⁷? Yes. Can I write down it like 4.9948 into 10⁻⁻3 into 10⁻⁻3 into 10⁻⁻7? Yes. तो ये 3 इसको दे दिए, तो 4994.8 into 10⁻⁻10, तो ये आ गया आपके पास 4994.8 एंगस्ट्रॉम। तो अप्रोक्सीमेटली 4995 एंगस्ट्रॉम। गुड। So that's it for today. We will continue with more questions in the next session.